एवरीवन, माय नेम इज़ CMA पंक्ति वेनी। वेलकम बैक टू CMA मॉड्यूल्स। आज हम जो वीडियो लेक्चर बना रहे हैं वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पे बना रहे हैं, जो कि स्टडी नोट नंबर 1 पेपर नंबर 15 से है। व्हाट इज़ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग is a form of costing which will help me to understand a certain cost of a product or a project right from zero level of a product or a project to the decline level. So what is life cycle costing? Life cycle costing aims at cost ascertainment of a product or a project over its projected life, entire life. So it is a system that tracks and accumulates actual cost and revenue from its inception to its abandonment, right from the birth of the product to the decline stage of the product. जो भी खर्चा हुआ है वो सब मैं 4 phases में डिवाइड करके एनालाइज करती हूँ, असरटेन करती हूँ। तो कौन से 4 phases है? फर्स्ट इज डेवलपमेंट फेज। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं R&D कॉस्ट, डिज़ाइन कॉस्ट। इंट्रोडक्शन फेज, प्रोडक्शन प्रमोशन कॉस्ट, कैपेसिटी कॉस्ट. Then comes growth and maturity phase. Here we have manufacturing cost, distribution cost, support cost. Then we have decline phase. Here we have scrap, selling off at a lower price, refused cost. So such type of cost are covered under this chapter. This chapter is important for theory as well as for sums. Now we can expect a short note. We can expect 2 marks meaning short questions, meaning questions. And we can also expect sums from this answer, from this chapter. So यहाँ पे जो भी questions mentioned है, meaning of life cycle, meaning of product life cycle, characteristics of product life cycle, phases of product life cycle, कभी ना कभी पूछा है and important है. Coming to questions, there are 5 numerical questions given in this chapter. So first one is, Wipro is examining profitability and pricing policies of its software division. Software division develops software packages for engineers. It has collected data on 3 of its more recent packages. First is ECE package, CE package and IE package. तो विप्रो के पास विप्रो अपना सॉफ्टवेयर डिवीजन का प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्राइसिंग पॉलिसी एग्जामिन कर रहा है. 3 डिविजन्स है, ECE पैकेज है, CE पैकेज एंड IE पैकेज. 3 डिविजन्स, 3 पैकेजेस का इंफॉर्मेशन हमें दिया है. सो समरी इज ECE, CE एंड IE पैकेज का सेलिंग प्राइस दिया है एंड नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड फॉर ईयर 1 and year 2 दे हैव गिवन अस. Assume that no inventory remains on hand at the end of year 2. Wipro is examining which product lines to emphasize in its software division. In the past 2 years, profitability of these division has been mediocre. Wipro is particularly concerned with increase in R&D cost in several of its software divisions. ठीक है, फिर मुझे दिया है यहाँ पे कॉस्ट दिया है, रेवेन्यू दिया है, 2 साल का दिया है फॉर 3 सॉफ्टवेयर डिविजन्स. Present a product life cycle costing income statement for each software package. Which package is most profitable and which is least profitable? How do the 3 packages differ in their cost structure? Okay, so first one is, ये सम बहुत ईजी है. ये सम करने के लिए मुझे सिर्फ मेरा इनकम स्टेटमेंट बनाना है. इनकम स्टेटमेंट कोई भी हो, कैसे भी हो, इनकम स्टेटमेंट में हमेशा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस होता है. यहाँ पे भी मैंने वही किया. यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो मुझे इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंट करना है और मुझे बताना है कि कौन सा लीस्ट प्रॉफिटेबल है और कौन सा मोर प्रॉफिटेबल है, और उसका प्रॉफिट परसेंटेज भी देना है. तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए मेरे लिए बहुत ही ईजी है. रेवेन्यू माइनस कॉस्ट विल गिव मी प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट विल गिव मी प्रॉफिट. तो यहाँ पे भी वही है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर दिया है और मुझे प्रॉफिट आ गया है. एज इट इज़ फ्रॉम द क्वेश्चन ही मैंने कॉपी किया है, जस्ट इन अनदर फॉर्मेट, दैट्स इट. कोई फॉर्मेट कुछ मतलब कोई डेटा कुछ चेंज नहीं हुआ है. सिर्फ यहाँ पे मेरा क्वेश्चन फॉर्म में मुझे 2 साल का डेटा दिया है, यहाँ पे वही डेटा को मैंने टोटल किया है, एग्रीगेट किया है एंड परसेंटेज फाइंड आउट किया है.
एंड फाइनली अगर देखेंगे तो यहाँ पे 350 आ रहा है मेरा प्रॉफिट ECE पैकेज का, 240 आ रहा है CE पैकेज का, और IE का 96 जो कि लॉस आ रहा है. सो विच इज़ मोर फेवरेबल? ECE पैकेज इज़ मोस्ट प्रॉफिटेबल, सो दैट पैकेज इज़ फेवरेबल टू मी, एंड 96 is a loss. IE package is giving me a loss, so that is least favorable to me. Okay, so this was my question 1. Coming to question 2, A2Z PLC supports the concept of Tero technology or a life cycle costing for new investment decisions covering its engineering activities. Financial side of this philosophy is now well established and its principles extended to all other areas of decision making. सो इन्फॉर्मेशन दिया है कि A2Z कंपनी जो है वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग यूज़ कर रही है, एंड बाय यूजिंग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग वो क्या कर रही है, वो अपने इन्वेस्टमेंट्स मतलब कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा मशीन परचेज करना है, वो डिसाइड कर रही है. कंपनी इज़ टू रिप्लेस अ नंबर ऑफ इट्स मशीन्स एंड प्रोडक्शन मैनेजर इज टोन बिटवीन X मशीन एंड Y मशीन. तो X मशीन क्या है, मोर एक्सपेंसिव, और उसका लाइफ कितना है, 12 ईयर्स, एंड Y मशीन विद एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 6 ईयर्स. If the Y machine is chosen, it is likely that it would be replaced at the end of 6 years by another Y machine. The pattern of maintenance and running cost is given below. So मुझे क्या दिया है यहाँ पे, लाइफ ऑफ द मशीन दिया है, X मशीन का 12 ईयर्स है एंड Y मशीन का 6 ईयर्स है, और उसका परचेस पैटर्न और एक्सपेंस पैटर्न मुझे यहाँ पे नीचे दिया है. सो परचेस प्राइस अगर मैं X मशीन का देखूँ तो 19,000 है, स्क्रैप वैल्यू देखूँ तो 3,000, रिपेयर कॉस्ट 2,000 एंड ओवरहॉलिंग कॉस्ट 4,000. एस्टिमेटेड फाइनेंसिंग कॉस्ट एवरेज्ड ओवर मशीन लाइफ 10% मुझे मेरा PV फैक्टर दिया है. सो नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू रिकमेंड विथ सपोर्टिंग फिगर्स विच मशीन टू परचेस. सो 19,000 मेरा परचेस प्राइस है. सो ये आज के ही डेट पे है, इसको मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. बट ट्रेड वैल्यू जो मुझे दिया है, स्क्रैप वैल्यू, ये मुझे 12th ईयर पे मिलने वाला है. तो ये जो 12th ईयर पे मिलने वाला है उसका आज के डेट में क्या उसका वैल्यू होगा वो फाइंड आउट करना है. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी फाइंडिंग आउट 3,000 इंटू PV फैक्टर. तो वो कैसे किया है, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 ऐसे करके करना है. बट 1.1 कैसे आया, 10% क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे मुझे 10% दिया है. सो 10 डिवाइडेड बाई 100 दैट विल गिव मी 0.1 प्लस 1 दैट इज़ 1.1. सो आई नीड टू फाइंड आउट माई PV फैक्टर फॉर 8th ईयर. 8th ईयर में मुझे मिलेगा. सो 1.1 डिवाइडेड बाई 1.1, दिस इज़ फॉर ईयर 1. आई एम जस्ट प्रेसिंग इक्वल टू ईयर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सो फॉर ईयर 2 मेरा जो PV फैक्टर है वो 0.32 है. सो ईयर ऑल्सो आई एम सपोज टू मल्टीप्लाई 3,000 इंटू 0.32 दैट विल गिव मी 960. तो ये मैंने मेरा परचेस प्राइस में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दिया. देन जो मुझे मिल रहा है वो 18,000 मिल रहा है. स्क्रैप वैल्यू आज के डेट वाला 18,000 मिला. ये 18,000 में मैं क्या कर रही हूँ, मैं मेरा प्रेजेंट वैल्यू जो मेरा कॉस्ट है उसका प्रेजेंट वैल्यू ला रही हूँ. ये तो मुझे हर साल करना है, तो हर साल 12 साल के लिए करना है. तो ये इसका 12 साल के लिए जो भी मेरा PV फैक्टर होगा वो मुझे ऐड करना है. तो ये कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.1. सो दिस इज़ फॉर ईयर 1. आई विल प्रेस M+ साइन. आई एम पुटिंग इट टू द मेमोरी ऑफ कैलकुलेटर. अगेन सेकेंड ईयर M+, थर्ड ईयर M+, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. आफ्टर डूइंग दिस, ये लास्ट भी मैंने मेमोरी में डाला है. फिर मैं फाइनली ये मेमोरी रिकॉल बटन प्रेस करूँगी तो मुझे 12 साल का क्यूमुलेटेड PV फैक्टर मिलेगा. और वो 12 साल का जो मिला वो मैं 2000 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी. वाई आई एम मल्टीप्लाइंग क्यूमुलेटिव PV फैक्टर फॉर 12 years? बिकॉज ईयर दे हैव यूज्ड वर्ड एज एनुअल. So that's why I'm using accumulated PV factor. I'm multiplying and I'm adding to my repair cost. Then I have overhauling cost. Overhauling cost is done at year 8, only at that year. तो यहाँ पे मुझे सिर्फ
8वें साल का 8th ईयर का पीवी फैक्टर चाहिए, तो ये कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 1 ईयर 1, ईयर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अरे सॉरी 1 डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so it is 0.466, so that is 0.47. If I multiply, I'll get my X machine. So the cost of X machine is 33,540. 19,000 is my purchase price, उसमें से स्क्रैप निकाला, 18,000 आया बैलेंसिंग फिगर, उसमें मैंने रिपेयर कॉस्ट और ओवरहॉलिंग कॉस्ट का प्रेजेंट वैल्यू जो था वो ऐड कर दिया, 33,540 आया। ठीक है, यहाँ तक डन। अभी ये जो है ये 12 साल का डेटा है, मुझे 1 साल का चाहिए, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे आंसर करना है कि मुझे X मशीन लेना है या Y मशीन लेना है। तो वो आंसर करने के लिए मुझे बेस कॉमन करना पड़ेगा। तो अगर बेस कॉमन करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं उसका जो भी पीवी फैक्टर है उससे मैं डिवाइड कर दूँगी। तो पीवी फैक्टर से डिवाइड करने से आई विल गेट माई डेटा इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। दोनों जगह पे हम वैसा ही करेंगे। अगर वैसा किया तो 1 ईयर का मिलेगा, फिर कंपैरिजन के लिए इजी हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो 33,540 को मैंने 6.81, एंड व्हाट इज 6.81, क्यूमुलेटिव फिगर, क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर फॉर 12 ईयर्स, उससे ही डिवाइड किया है। तो मुझे वो 4925 मतलब 1 साल का डेटा मिल गया। ठीक है, कमिंग टू वाई मशीन। तो वाई मशीन में मुझे परचेस प्राइस दिया है, सेम मुझे यहाँ पे स्क्रैप दिया है, तो स्क्रैप का मैं प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी उसी तरीके से 10%, पर यहाँ पे 6 ईयर का डेटा यूज़ करना है, 6th ईयर पे। ये 6th ईयर पे क्या है वो मुझे निकालना है। वो लेस करने के बाद आई गेट माई नेट फिगर। उसमें मैं क्या करूँगी, उसमें मैं मेरा ओवरहॉलिंग कॉस्ट एंड रिपेयर कॉस्ट ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो मुझे टोटल मिलेगा, this I'll divide by PV factor of 6 years, 6 years का क्यूमुलेटिव PV फैक्टर मैं डिवाइड करूँगी, तो मुझे 1 साल का मिलेगा। नाउ इट इज़ वेरी इजी फॉर कंपैरिजन, जहाँ पे कॉस्ट कम है वो मशीन मुझे परचेस करना है। तो X मशीन इज़ बेटर बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट कम है। सो दिस वॉज माई सम नंबर 2। सेम वे वी विल बी गोइंग फॉर सम नंबर 3। सम नंबर 3 to some extent similar है। So company X is focused to choose between two machine A and B. The two machines are designed differently but have identical capacity and do exactly the same job. Machine A cost 1,50,000 while last for 3 years. Machine A का cost 1,50,000 और life 3 years है। It cost 40,000 per year to run. Machine B is an economy model costing only 1 lakh. तो मशीन बी का इकोनॉमी मॉडल मतलब उसका कॉस्ट 1 लाख है और उसका जो लाइफ है वो 2 ईयर्स है, 2 साल तक चलेगा, और उसका कॉस्ट है रनिंग कॉस्ट 60,000 है। चलाने के लिए 60,000 कॉस्ट पर ईयर देना पड़ेगा। पर ईयर 60,000 2 साल के लिए, पर ईयर 40,000 3 साल के लिए। So these are real cash flows. The costs are forecasted in rupees of constant purchasing power. Ignore tax and opportunity cost मतलब PV फैक्टर मुझे दिया है 10%। तो ये मेरे लिए बहुत ही ईजी है। मुझे पहले 10% का 3 साल के लिए क्यूमुलेटिव फैक्टर निकालना है। मैं पहले X मशीन का A मशीन का कर लेती हूँ। तो 10 डिवाइडेड बाय 100 दैट विल गिव मी 1, 0.1 प्लस 1। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 दिस इज फॉर ईयर 1, M plus year 2, M plus year 3, M plus and memory recall. This will give me 2.486. So here 2.486. This 2.486 I am supposed to multiply with my 40,000. Why multiplying with 40,000? ये जो है 40,000 ये हर एक साल 3 साल के लिए मैं करने वाली हूँ। तो 1,20,000 होगा। तो 1,20,000 का आज के डेट में उसका वैल्यू क्या है वो मैंने फाइंड आउट किया, वो मुझे मिल रहा है 99,440। करेक्ट। सेम मैं मेरा मशीन बी के लिए निकालूंगी 10% फॉर 2 ईयर्स, सो दैट इज़ गिविंग मी 1.735। वो भी देख लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 फॉर ईयर 1,
M plus, year 2 M plus, and then memory recall. That will give me 1.735. 1.735 into 60,000, that will give me 1,04,000 as my cost. ओके, आई ऐड दिस टू माई कॉस्ट, तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल रहा है. ये कॉस्ट जो है 3 साल का है, ये 2 साल का है, तो कंपैरिजन में प्रॉब्लम होगा. तो क्या करो, इसको जो मेरा पीवी फैक्टर, क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर है, उससे डिवाइड करो. तो मुझे जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो मेरा 1 साल का आंसर होगा. तो ये मेरे लिए कंपैरिजन के लिए ईजी हो जाएगा. ठीक है. सिंस द एनुअल कैश आउटफ्लो ऑफ मशीन बी इज़ हायर, इसका हायर है, ये कॉस्ट कम है, तो मुझे मशीन ए परचेज करना चाहिए. ओके, दिस वॉज माई सम नंबर 3. I'll complete sum number 5, which is very much similar to this, and then I'll come to question number 4. So a company is considering purchase of a machine for 3,50,000. It feels quite confident that it can sell the goods purchased by machine as to yield an annual cash surplus of 1 lakh. तो 3,50,000 मेरा कॉस्ट है और 1 लाख क्या है मेरा सरप्लस. There is however uncertainty as to the machine working life. A recently published trade association survey shows that members of the association have between them owned 250 of these machines and have found the lives of the machines vary as under. तो मुझे क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ द मशीन दिया है जो कि 3,50,000 है और 1 लाख मेरा सरप्लस अमाउंट है. ओके, द अमाउंट विच आई एम अर्निंग. सो नाउ यहाँ पे मुझे ईयर्स दिया है एंड नंबर ऑफ मशीन्स हैविंग गिवन लाइफ, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मशीन लाइफ एंड नंबर ऑफ मशीन्स हैविंग गिवन लाइफ. ओके, नाउ अज्यूमिंग डिस्काउंट रेट टू बी 10%, मुझे मेरा NPV दिया है. तो यहाँ पे कैसे करना है, मुझे NPV फाइंड आउट करना है. तो NPV कैसे क्या होता है, NPV इज़ नथिंग बट PV ऑफ माई कैश इनफ्लोज माइनस PV ऑफ कैश आउटफ्लोज, दैट विल गिव मी NPV. अगर NPV पॉजिटिव है सो दैट इज़ एक्सेप्टेड, और अगर वो नेगेटिव है तो वो रिजेक्ट करना है. तो ये केस में NPV पॉजिटिव है तो ये एक्सेप्ट किया जाएगा. ठीक है. ये करना कैसे है, ये मुझे फ्रिक्वेंसी दिया है तो इसका पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लो. तो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, 20 अपॉन टोटल, 50 अपॉन टोटल, 100 अपॉन टोटल, प्रोबेबिलिटी निकाल लिया. मुझे NPV ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में. NPV को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगा. ये एक्सपेक्टेड वैल्यू मैं ऐड करूँगी, जो एग्रीगेट अमाउंट है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स आई शुड एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट. Okay, I should purchase this asset, I should purchase this machinery. Fine. So this is my sum number 5. Going for sum number 4. Sum number 4 is very easy. Here they are asking us to go for 2 options. First one is मैं purchase करूँ machine या replace करूँ, 2 options है. So AN company is contemplating whether to replace an existing machine or to spend money on overhauling it. AN company currently pays no taxes. A replacement machine costs rupees 90,000 now and requires maintenance of 10,000 at the end of every year for 8 years. अगर मैंने replacement किया तो 90,000 मुझे अभी देना है और 10,000 maintenance के नाम पे हर साल देना है for 8 years. At the end of 8th year, it would have a salvage value of 20,000. 8वें साल पे उसका salvage value क्या होगा, 20,000 and would be sold. The existing machine requires increasing amount of maintenance each year and its salvage value falls each year as follows. Okay, so existing machine में मुझे maintenance लगेगा, existing machine में मुझे maintenance का cost लगेगा और जब भी मैं sell करूँगी तो salvage value मुझे दिया है. ठीक है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर AN कंपनी इज 15%. व्हेन शुड द कंपनी रिप्लेस द मशीन. मुझे पूछा है कि कंपनी को मशीन रिप्लेस कभी करना चाहिए. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15% दिया है. ठीक है. तो यहाँ पे पहले मैं न्यू मशीन अगर परचेस किया तो उसका मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ. तो न्यू मशीन परचेस किया तो 90,000 मेरा उसका परचेस प्राइस हो गया. अभी 10,000 मुझे हर साल देना है. ठीक है, एन्युअली देना है हर साल. तो मैं क्या करूँगी, 8 साल का PV फैक्टर ऐड कर दूँगी. तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं. 1 डिवाइडेड बाई 1.15 फॉर ईयर 1 M प्लस, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5,
ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8 एंड मेमोरी रिकॉल. सो आई एम गेटिंग 4.48. अगर नहीं भी दिया है तो यहाँ पे नहीं भी हो रहा है तो यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया है, वो मैंने मेरे मेंटेनेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे मेरा एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट आ गया. वो मैं ऐड करूँगी तो मुझे 1,34,000 आएगा. उसमें से मैं सैल्वेज वैल्यू निकाल दूँगी. तो सैल्वेज वैल्यू मेरा क्या है, यहाँ पे दिया है 10,000. सैल्वेज वैल्यू दे हैव गिवन मी एज 10,000. सो दैट 10,000 इफ आई रिमूव, सॉरी 20,000 दे हैव गिवन टू मी इन द क्वेश्चन. सो 20,000 मुझे 8वें साल पे मिलेगा, तो उसको मैंने प्रेजेंट वैल्यू पे लाके उसका 6,538, तो वो मैं करूँगी कैलकुलेट, तो आई विल बी गेटिंग 1,28,000. इसका इक्विवेलेंट कॉस्ट निकाल लिया, दैट इज़ 28,600. ये कैसे निकाला है, बाय डिवाइडिंग क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर फॉर 8 ईयर्स. ठीक है, ये मेरा अगर मैंने न्यू मशीन परचेस किया तो क्या होगा वो बताया है. अभी अगर मैं रिप्लेसमेंट कर रही हूँ, एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस कर रही हूँ, तो कैसे करना है, तो पीवी ऑफ सैल्वेज वैल्यू एट द बिगनिंग, तो 40,000 मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है बिगनिंग वाला सैल्वेज वैल्यू, तो ये मैं लूँगी. और इसका ये मेरा बिगनिंग मतलब 0 लेवल पे ही है, 0 डे पे ही है. इस पर मुझे क्या करना है, मेरा जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. 1 साल का मुझे पीवी फैक्टर्स मल्टीप्लाई करना है, एंड आई विल ऐड दैट कॉस्ट ऑल्सो, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड माई परचेज कॉस्ट बोथ. तो मुझे मिलेगा 48,000. 48,000 में से मैंने मेरा जो सैल्वेज वैल्यू है वो साल का, ये मैंने परचेज किया है, दूसरे साल का जो सैल्वेज वैल्यू है वो मैं निकाल दूंगी. सॉरी 25,000, दूसरे साल का जो मेरा सैल्वेज वैल्यू है 25,000, ये मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट है 25,000. ये 25,000 मैं मल्टीप्लाई करूँगी प्रेजेंट पीवी फैक्टर के साथ, तो मुझे आ जाएगा 21,739. ठीक है, ये मैंने माइनस किया, 48,000 इज़ माई कॉस्ट, सैल्वेज वैल्यू इज़ माई इनकम, माइनस किया तो मुझे आ रहा है 26,957. दिस 26,957 को मैं इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट के पीवी फैक्टर से मैं अगर कर दूँ डिवाइड, तो मुझे 1 साल का मतलब पर ईयर का मिल जाएगा. यहाँ पे भी पर ईयर, यहाँ पे भी पर ईयर. वैसे ही मैंने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का निकाला है. तो अगर आप देखेंगे तो मुझे जो थर्ड ईयर में है 37,250 आ रहा है, फोर्थ ईयर में 51,500 आ रहा है, थर्ड ईयर में मतलब मेरा रिप्लेसमेंट इज़ वेरी कॉस्टली. बट अगर मैं न्यू मशीन परचेज कर रही हूँ तो मेरा न्यू मशीन 28,600 में हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, सिंस इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज लेसर देन द एग्जिस्टिंग मशीन, इट इज सजेस्टेड टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग मशीन विथ न्यू मशीन. पहले तो सजेस्ट कर रहा है कि हम एग्जिस्टिंग मशीन को न्यू मशीन से रिप्लेस कर दो. The equivalent annual cost of existing machine is higher in all the 4 years as compared to new machine. तो हम बता रहे हैं कि equivalent annual cost जो चारों साल में है रिप्लेसमेंट का वो हायर है, तो रिप्लेस ना करके आप क्या करो, न्यू मशीन ही परचेज कर लो. ठीक है, सो दिस वॉज माई लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. आई होप आपको यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हो. 5 सम्स है और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के थियोरी आंसर्स है, समझ में आए हो. अगर समझ में आए हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.